टफनेस नंबर 5 रहता है, नंबर 7 रहता है, नंबर 8 रहता है, 4 ये रहते हैं और यहाँ पर 3, 4 and 6 रहता है. So a total of about 7 sessions are left to be done. 7 topics. 7 topics, 7 sessions out of a total of 18. मतलब 11 हो गए. बीच में एक दिन ऐसा आया था, ऐसा ही वाला दिन, जहाँ पर हम एक ही सेशन कर पाए थे. So my question to you is, do we have time for completing 2 sessions? Because if we start now, we will end by 1:30 if we do 2 sessions. As opposed to spending 2 hours on one session, and then we will have 6 sessions to complete after that, जो हम 3 meetings में complete कर लेंगे. तो अभी हम odd number पे आए हैं. So the question is, do we do 1 or do we do 2? Let's go to. Question is 130 comfortable for हाँ, everyone. that is the question. और मेरे लिए तो है. जिसके लिए नहीं है वो हैंड रेज कर also depends on your, it's not only time, but Absorb. You decide. Mind setup. I'm okay doing 2. And we should be okay doing it. No, what I'm saying is, हमारे अभी odd number पे है. हमें in any case एक सेशन करना है पूरे कोर्स में, जिसमें एक ही सेशन होगा. तो वो आज करना है या वो फिर कभी करना है? एटलीस्ट हम नेक्स्ट टाइम पे शेड्यूल करके 2 कर सकते हैं. अभी ऑलरेडी 1 घंटा लेट है और 2 करेंगे तो थोड़ा पुश ही That's what I meant. आज ही कर लेते हैं सर. एक दिन हमें एक करना है. तो वो आज Should कर that लेते day be हैं. today? Yeah. Or should be the last? So that means we will end by. We should. No, फिर भी मैं 2 घंटे तो ले लूँगा आपसे. तो 12:30. 12:30 तक. 12:30 पौने 1 तक फ्री हो जाएंगे. एक सेशन में डेप्थ में चले जाएंगे फिर आज. वो बेटर जी, है. सर. स्ट्रॉन्ग मतलब डेप्थ वाला Right? Yeah. Next time थोड़ी सी efficiency रखेंगे. I understand venue दोबारा change हुआ तो ब्रेकफास्ट ऊपर ले breakfast ऊपर नीचे हो गया. All those things, right? So yeah. So next time we'll do it in such a way कि 9:30 sharp start करना. ठीक है. We are exactly 1 hour late. I think breakfast was too good and discussions kept happening. And all right, great. So we had planned to do 2 sessions today, right? And जिसमें एक सेशन हमारा number 6 session, building a winning culture. The second session we were planning to do was practicing mindfulness. I suggest we can focus on building a winning culture. Right? Spend about 2 hours on that. Practicing mindfulness जब next time करेंगे थोड़ा fresh mind के साथ करेंगे. And I'd suggest that we keep the breakfast light next time. So I understand that there is a desire to eat everything which is on the table. But पढ़ाई के लिए थोड़ा पेट भरा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी भरा नहीं होना चाहिए. नहीं तो नींद आ जाती है. Right. So we'll do that as the first session next time. So let's focus on building a winning culture. Okay. Last time जो who all were you? कौन था लास्ट सेशन में ताज वाले? बट मैंने वो आपका जो मैंने रिकॉर्डिंग है वो सेशन नहीं रिकॉर्डिंग था? हुआ था रिकॉर्डिंग? हाँ समझ आता है कुछ रिकॉर्डिंग? अगर हम कर रहे हैं तो बाकी कोई तो Any quick debrief from last session? Anything you remember? Anything you'd like to share before we get on to today's session? strategy tactics. Oh. No, that was in March. आदो को याद नहीं आ रहा. Ethical leadership. एथिक्स पे था सारा. Ethical leadership. अटेंडेंस बहुत कम थी ना. Ethical leadership. Ethical. कुछ किया आपने उसके बाद? उस टाइम तो बहुत एंथो था. हमारा तो नो नोट एथिक्स इज एथिक्स. तो लोग सेशन देखने के बाद में जो रिलेट कर पा रहा था ना सारा अपना हाँ. business. क्या रिलेट किया आपने? जो एथिक्स नहीं है वही एथिक्स बन गया. अच्छा. वो जो उसमें सब चीज़ अब वो ये ओके हो गया सब चीज़. सब ओके ये तो हो गया. चलता है, ये चलता है, अब ये ही चलता है. Right.
We were discussing that day with Professor Sani. Loud, I think for everyone. So that day we were discussing with Professor Sani, तो उन्होंने ये बोला कि US के कल्चर में और इंडिया में ये फ़र्क है कि इंडिया में आप इतना झूठ बोलते हो सुबह से लेके शाम तक कह रहे हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू डोंट इवन नो दैट यू आर लाइंग बिकॉज दैट इज योर नॉर्मल डीप सबकॉन्शियस में जो ये बात जो बात आपने बोली वही बात थी कि भाई हम इतना झूठ बोलने लग गए हैं और वो सेम चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रही है. इट इज़ लाइक वही हमारा इंडिया का वही बना हुआ सिस्टम डीएनए बन गया वो. डीएनए बन गया है. सो व्हाट ही वाज शेयरिंग इज कि अगर आप यूएस आके काम करोगे तो देन यू नो आपके अंदर एक चेंज आएगा. सो ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट पार्ट. तो चाहे मैं उनको ये बात बोल रहा था कि वी ट्राई टू बी वेरी एथिकल, बट कॉन्वर्सेशन में ये निकल कर आया कि कहीं पे वो जो डीएनए वाला पार्ट है उसको तो आप हटा ही नहीं सकते. तो उतना तो हम बेसिक ही लेके चल रहे हैं. सो दैट इज समथिंग उसके अंदर मुझे नहीं पता था वो कैसे जाएगा. दैट थिंग दैट इज सो डीपली इनग्रेन्ड इन आवर सिस्टम कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो नज़र आ रहा है उसे ठीक कर सकते हो, जो नज़र ही नहीं आ रहा उसको ठीक कर सकते हो, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं. It's a muscle. You know, so all of these things are like muscles. Soft muscles हैं जो visible नहीं होते. And till you build them, they don't get built. Yeah. Right? And muscles don't get built overnight. You know that. इनको देखो आप overnight थोड़ी है पतले हुए इतने fit हुए हैं. Right? He's working hard on it. Right? But there is an intent. Without an intent, possibility नहीं है. Right? So it's not about wishing. I wish I can be fit. Right? It's different between wish and will. सिर्फ दो लेटर्स का फर्क है लेकिन सब कुछ चेंज हो जाता है. And then win. Right? So if you have the intent and you have the will, not just a desire. Desire तो सभी की होती है. Everybody wishes and desires to be fit, to look good. Everybody should be कि भाई हम attractive बन जाएं, Manish भी ऐसे. right? Magnet बन जाएं. हर कोई चाहता है. But what is the action you are doing towards it? Is there a will along with that, which is waking you up every morning to act in a particular way? Ethics भी बिल्कुल वैसा ही है. So if you don't believe in the idea of ethics, तो फिर तो आप बहुत ही पीछे हो. बिलीफ आ गया बट पुराने एक्शंस ऐसे हैं कि इतना स्ट्रांगली अपने ऊपर सबकॉन्शियसनेस को ट्रैप करके बैठे हैं कि हमने उसे न्यू नॉर्म बना लिया है कि आई थिंक दिस इज नॉर्मल बिहेवियर. सो देन इट टेंड्स टू बी डजंट मैटर. देयर इज नो विल. सुना था ये शायद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बट हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि रियलिटी में ये सब नहीं होता. इट्स नॉट ट्रू. रियलिटी में भी ये सब होता है. एंड वी शोड यू एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर्स जो इसको प्रैक्टिस करते हैं. जैसे यूएस में मैं आई वॉज सरप्राइज टू नो कि कोई स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए. वो आई थिंक कहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्लेन पेपर इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट्स. It's a matter I of was not trust. aware of this. Yeah. So In India that is also, matter of belief, I In think. India also, any paper in exchange Proof तो use हो ही India, सकता है. that is a legal document. फिर भी यहाँ आदत है ना कि स्टैम्प पेपर पे आदत है. करेंगे. हाँ उनकी जबरदस्ती स्टैम्प पेपर करवा. And then you also said there is no hard work. It's just work. हाँ, you know, so it's a huge cultural gap which has got created. और हमारे यहाँ पर trust exist ही नहीं करता है. Right? And forget about outside, in the outside world. मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसके बाहर देखते हो. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. For example, how many of you, as leaders of your organizations, very comfortably share everything to do with finance with all your team members openly? हमारे यहाँ बात काम एजिलिटी में या दूसरे वाले वेंचर? एजिलिटी में, न्यू एज वेंचर था. मतलब यहाँ खुल के बात होती है. जहाँ खुल अगर के- हमें फंड्स अरेंज करने पड़ रहे हैं, वी टेल देम दैट यू नो वेरी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा. लीडरशिप टीम जो है उनसे होता है. लीडरशिप टीम के साथ होता है. बट नेक्स्ट लेवल पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाते आसानी से कि एक्चुअली वी फियर. वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडियंस आर नॉट गेटिंग इनटू दैट माइंड स्पेस, and I will get to creating a winning culture is actually somewhat linked to this topic. We fear that we are going to be judged negatively, even if you are not doing something negative. Yes.
या लगता है कि नज़र ना लग जाए सामने वालों की नजर मतलब ये होता है ना, ज़्यादा शेयर नहीं करते नहीं नहीं, खुल के अगर कि- आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बात होती है कि अगर आप ज़्यादा बोझ- आप शेयर करने लग जाओ कि क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, वही हर चीज़ यू नो ऑल दैट इज द मेजर It's a fear. इट्स अ फियर। मतलब बट वी डोंट ट्रेन आवर पीपल कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसके बाद इतने सारे खर्चे हैं, ये है वो है उसके, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप। उनको पता ही नहीं कि इक्वेशन क्या है। सिंपल P&L की इक्वेशन अगर एक एक आदमी को समझ आ जाए कंपनी के अंदर, अब उसको जज ही करना है तो कर ले, जज कर ले, आके देख ले भाई कितना पैसा बचता है। देयर इज नो बिजनेस विच सेव्स टू मच मनी। बहुत रेयर होता है यार, कोई एक आधा कुछ लग जाता है तो लग जाता है। सभी की वो जो पैट प्रोफाइल होती है वो 2-3% से लेके आउटर लिमिट 15 तक खींच लोगे आप। एबिटा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ग्रॉस सबका वही 40 से 70-80% के बीच में होगा, विच इज़ कंसिडर्ड गुड एनी बिजनेस, राइट। अब वो FMCG है तो थोड़ा इधर, पर्सनल केयर है तो थोड़ा उधर, हॉस्पिटल है तो थोड़ा अलग, बट मोटी मोटी कहानी वो डिफरेंट नहीं होती। और अगर लॉस कमा रहे हो तो दिखाना पड़ता है प्रॉफिट, तो वो दोज आर थिंग्स बिकॉज गवर्नमेंट अगेन ट्रस्ट ही नहीं है। You know, so about 4 years ago, we turned a loss for the very first time. So I told my finance head, he's a fractional CFO, full time नहीं है वो, कहते लॉस आया है, तो दिखाओ, नहीं दिखाना नहीं है। क्यों? वो बैंक जो लिमिट दे रखी है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। यार ये क्या है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? एंड में खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। I kept fighting with him. I said, till we show a loss and till we feel hurt about it, we will never make a genuine effort to turn a profit. खुद से ही एथिकल नहीं है। अगर बैंक लिमिट नहीं दे रहा तो उनको कहीं लग रहा होगा कि यार ये बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, मुझे ठीक करना चाहिए। बहुत एफर्ट लगा, फाइनली आई कन्विंस्ड हिम कि लॉस दिखाया लॉस, और फिर बैंक को भी कन्विंस किया, तो बैंक वाले भी मान गए कि नहीं ठीक है, ऑर्डर पाइप ठीक लग रही है, आगे ठीक लग रहा है। धीरे थोड़े स्लो हो गए वो, फिर देन दे एक्सपैंडेड। इट टेक्स करेज। इफ यू रिकॉल, जैसे कि हमारी कंपनी में था कि एक आदत बन गई थी धीरे धीरे शुरू करके कि अगर एक स्टाफ को ज़्यादा देना पड़ रहा है, भाई तेरे को इतना चेक दे देंगे, इतना अमाउंट की टीम को नहीं दिखाना, अपने आउट ऑफ हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बताना नहीं हम किसी किससे। फिर एक दिन बैठ के काफ़ी बढ़ता जा रहा था और एक हैबिट ही बन गई थी कि किसी को लाना है ना, वो क्या सोचेगा, मतलब ये सोचते सोचते ही ना वो एक सिस्टम बन गया। सिस्टम बन गया। फिर एक दिन मतलब परेशान होकर ना मैंने कहा कि पापा हम किससे छुप रहे हैं, किससे छुप रहे हैं? कौन हमारे ऊपर है जो हमको जिसको जवाब देना है, मतलब उसको राइट ऑफ कर दिया। तो हमने उसी महीने में बैठ के, मतलब मैंने सबका जब रीस्ट्रक्चरिंग अभी हुई लास्ट, किसी का भी मतलब देना ही नहीं। उसके बाद भी ख्याल आया कहीं होंगे, जब नए को आया है ना, ज़्यादा वाला आया जिससे बात करने की इतना, लेकिन फिर वापस वो दिमाग में बात याद आई कि नहीं, वो मतलब लाना ही नहीं दोबारा, सिस्टम कभी शुरू ही नहीं करना है बड़ी कंपनी में किसी See, का। मैं आपको बताऊं, आप सबको, आई डोंट नो, विल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस आल्सो एंड अ स्टेट ऑफ पीस दैट यू वांट टू एंजॉय व्हाइल बिल्डिंग योर बिजनेस। See, many people think that building a business is not a peaceful exercise. सारा टाइम स्ट्रेस, सारा टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रही है। If you really want to enjoy your journey of building a venture, I'm telling you a very simple secret. Very simple. Start speaking to the truth. If you're performing bad, say so. चाहे वो client हो, चाहे employee हो, चाहे banker हो, I'm telling you, आप छुपाना बंद कर दो, सच्चाई बयान कर दो. People will start trusting you. People don't care if you're performing bad. They are worried that are you lying? That is a much bigger problem.
और स्टार्टअप्स भी हम जो इवैल्यूएशन की बात करते हैं उसमें भी सबसे बड़ा कंसर्न ही साला यही है यार, ये सब कुछ तो इन्फ्लेटेड है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है, गेम ही सारी इन्फ्लेटेड है, एक भी चीज में सच्चाई नहीं है। तो हाउ डू यू ट्रस्ट? बट वेयर डू यू स्टार्ट? लेट्स स्टॉप वरिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बाकी दुनिया ऐसी है, बट आप अपनी कंपनी में तो कुछ चेंज करो। You will see a huge difference in the culture of your organization. There is absolutely nothing wrong even if the last person in the company gets to know how much you're earning. उसको वैसे भी पता है यार आप अमीर लोग हो, भाई जब अच्छी गाड़ी में घूमते हो तो पैसे अच्छे कमा रहे होगे ना, तो उसे प्रॉक्सी क्यों रखना है? Why don't you build an aspiration for your people? You can also do this. You can also be where I am. We're not willing to fight that battle. We're very scared. That is why we are unethical. Not because we wish to be unethical. We're not courageous enough. हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, जजमेंट्स होंगे, ये होगा, वो होगा। सर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट्स दिखाती हैं वो भी मैनिपुलेट करती हैं प्रॉफिट्स, डायरेक्टर प्रॉफिट्स, या वो एज एक्चुअल होता है या वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो। सही बात है, उनके एथिक्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। Just by being listed, you can't say that the company is ethical. People still manipulate. But you will still be able to trust a few companies more than others, जिसको हम corporate governance कहते हैं। A totally independent set of directors looking at the company. A chairman who is not a managing director. अभी ये new regulations आए हैं company law, right? There is no concept of a CMD anymore. How can the chairman may also be the managing director? मतलब गवर्नेंस भी खुद ही कर रहा है और अपने ऊपर ही कर रहा है और एक्शन भी खुद ही ले रहा है। उस सेट मतलब पैरामीटर है ना, इतने टर्नओवर के बाद नहीं होगा। बट आई एम सेइंग, यू सी ऑल ऑफ यू डिजायर वन डे कि हमारी कंपनी का आईपीओ हो, ये हो। बिल्कुल प्रैक्टिस आज से करो ना, मसल आज से बिल्ड करो। ये थोड़ी कि जिस दिन आईपीओ करेंगे तब हम सोचेंगे इन चीज़ों के बारे तब एथिकल हो जाएंगे, में। तब एथिकल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, या तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस करेंगे। यू कांट चेंज द माइंडसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरनाइट। आज सोचोगे तो 3 से 5 साल लगेंगे, आज सोचोगे तो। एंड यू नो इफ यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, खुद को ही बदलना। लास्ट जो लोग कहते हैं कि हमने लिस्टिंग करनी है, तो मैं कहता 3-4 साल तो आपको लगेंगे यू नो चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन द वे यू आर रनिंग इट। बट वो इतना जल्दी नहीं होता कि भाई प्रॉफिट अगर दिखा रहे हैं कम, तो ये कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट दिखा दें, वो कॉस्ट देना। Yeah. बिकॉज I can tell you we are running this journey at least for 3 clients right now कि उनका डिज़ायर है आईपीओ पे जाना। पिछले 3 साल से लगातार हम यही काम कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट सपोज टू हैव अ बोर्ड, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ बोर्ड फॉर दैट, वी आर कॉलिंग इट एडवाइजरी बोर्ड फॉर नाउ, बट ऑल इंडिपेंडेंट पीपल। वो जब 2 MD बैठते हैं ना, 2 MD हैं, तो उनकी हम ले लेते हैं, खोल के लेते हैं। एंड बट क्रेडिट टू देम कि वो खुलवाने को तैयार हैं। मतलब how vulnerable you can you want to be. सो वी डिड आवर 13th बोर्ड मीटिंग, हर क्वार्टर करते हैं, अब 3 साल पूरे हो गए। देयर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट टुडे। इतना कॉन्फिडेंस है सच बोलने में, डर ही नहीं लगता। 1000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी होगी, नो फियर एट ऑल। What is the growth path? What is the growth path in some So we started, आप जानते हो उनको 11, when we started they were around 350, Yes, I followed them very well. 300-350 करोड़ पे थे 6 साल पहले। Never hear. सारे ही छिपा के काम करते हैं जब शुरू करते हैं, right? But if you have the vision to become big, you first have to start acting like that. Becoming big expects you, it is a requirement that you have to become more transparent, you have to become more true to yourself, to your organization, to your people.